নমস্কাৰ এটা বাতৰ হেতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা ডিব্ৰুগড় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৭খন কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰাৰ পাছত দেশবাসীক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায় প্ৰথমতে এএমচিএছত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰে ডিব্ৰুগড় কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান এএমচিএছৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা আন 6খন কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্যত পৰিণত হ'ল টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হয় এই অত্যাধুনিক কৰ্কট চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান ইয়াৰ পাছতে পুনে পুনে খনিকৰ পথাৰৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে उसमें न केवल कनेक्टिविटी की बात है और न केवल कम्युनिकेशन की बात है बल्कि लोगों की सेहत का कैसे बेहतर ढंग से ध्यान रखा जा रहा है कैसे उन्हें अच्छी सेहत से जोड़ा जा रहा है उन्हीं सुविधाओं का उन्हीं पहलों का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री तो एक बड़ी पहल है सेहत की दिशा में उत्तर पूर्व के लिए एक बड़ी सौगात है जब कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से निपटने के लिए और बढ़ रहे हैं भारत में भी लगातार कैंसर की बीमारी एक विकराल रूप ले रही है लेकिन कैसे उससे लड़ा जाए और इलाज के लिए ডিব্ৰুগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৭খন কৰ্কট চিকিৎসালয় আজি ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিলান্যাস কৰিছে আন ৭খন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে বিশাল জনসভাটো ভাগ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসমাৰোহত পৰিণত ডিব্ৰুগড় খনিকৰ পথাৰতো অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো অংশগ্ৰহণ লগতে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটা উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমতে মই ৰংগলী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছ उत्सव और उमंग के इस मौसम में असम के विकास की धारा को और गति देने का आज ये जो भव्य समारोह है उसमें मुझे भी आपके उस उमंग के साथ जुड़ने का अवसर मिला है आज इस ऐतिहासिक नगर से मैं असमिया गौरव असम के विकास में अपना योगदान देने वाली यहां की सभी महान संतानों का स्मरण करता हूं और आदरपूर्वक उन सबको नमन करता हूं साथियों भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का गीत है बोहाग माठो एटी ऋतु नय न होय बोहाग एटी मां असमिया जातिरी आयुष रेखा गोनो जीवनो रेखा असम की जीवन रेखा को अमिट और प्रखर बनाने के लिए हम दिन रात आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं इसी संकल्प के साथ बार बार आपके बीच आने का मन करता है असम आज शांति के लिए विकास के लिए एकजुट होकर उत्साह से भरा हुआ है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कार्बी आंगलोंग में देखा और मैं अनुभव कर रहा था क्या उमंग क्या उत्साह क्या सपने क्या संकल्प साथियों थोड़ी देर पहले मैंने डिब्रूगढ़ में नए बने कैंसर अस्पताल और वहां बनी सुविधाओं को भी देखा
आज यहां असम के 7 नए कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण किया गया है। एक जमाना था 7 साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था। आज वक्त बदल चुका है। एक दिन में एक राज्य में 7 अस्पताल खुल रहे हैं। ইফালে 3 সহস্ৰাধিক নাচনী ঢুলিয়াই ডিব্ৰুগড়ত আঁতৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। মঞ্চৰ পৰা নামি আহি বিহুটিক অভিবাদন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। কাৰ্বি আংলঙৰ লেৰিং থেপিটো বৰ্ণাঢ্য জনজাতীয় কলা কৃষ্টিৰে আদৰণি জনোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক। অসমীয়া সংস্কৃতি দেখি অভিভূত হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। কাৰ্বি আংলঙৰ লাৰিং থেপি আক্লামাটো ৰাজহুৱা সভাত অংশ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নৰ শ্লোগান দি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ। মাঞ্জা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা, কলঙাত কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা, উপ্পানাইত আদৰ্শ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে ৰাজ্যত মুকলি কৰিলে 2985টা অমৃত সৰোবৰৰ। ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পূৰ্বে কাৰ্বি পাহাৰত গুলী আৰু বেমাৰৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া হাত চাপৰি বাজিছে বুলি মন্তব্য কৰে। কাৰ্বি আংলঙত হাজাৰ কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ ৰূপায়ণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি নিবনুৱাৰ সংস্থাপন উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কাম হৈ আছে বুলি ভাষণত কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙতে পাব সকলো সুবিধা, এই মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। भारत माता की कार्बी आंगलंग कोर्टे इंजीर केडो आम अफांता नीली कार्डोम पजिरिगलो असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, कार्बी राजा श्री राम सिंह रोंगहांग जी, कार्बी आंगलांग ऑटोनोमस काउंसिल के श्री तुलसीराम रोंगहांग जी, असम सरकार में मंत्री श्री पीयूष हजारिका जी, जोगेन मोहन जी, संसद में मेरे साथी श्री होरेन सिंह बेजी, विधायक श्री भावेश कलिता जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और कार्बी आंगलंग के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे जब जब आपके बीच आने का मौका मिला है, आपका भरपूर प्यार, ये आपका अपनापन, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के आशीर्वाद मिल रहे हैं। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए, और वो भी उमंग, उत्साह और उत्सव के मूड में रंग बेरंगी अपनी परंपरागत वेशभूषा में, और जिस प्रकार से यहां प्रवेश द्वार पर यहां के सभी जनजातियों ने
अपनी पारंपरिक परंपरा के अनुसार 1,000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर अब उचित व्यवस्था होने से गरीब से गरीब परिवार भी अपनी संतान को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं उन पर भी असम सरकार लगातार कदम उठा रही है। हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंगलोंग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है। और आपने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए जिंदगी खपाने का मन कर जाता है।
ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম